Hi friends, welcome to English Study Point. In this video lecture, I am going to discuss with you about a figure of speech that is epizeuxis. A writer while using this figure of speech, he tries to repeat same word again and again in a continuous succession to add emphasis to an emotion or state of mind. Like, for example, if I saw one plate in front of me and I developed uh, a reaction towards that plate, like I have said about that plate, that this plate is yucky, yucky, yucky. So, here you can see that I am repeating one word that is yucky, yucky again and again. So, this is example of epizeuxis where I am repeating one word in a quick succession. So, epizeuxis involves a repetition of a word or a phrase in quick succession. Epizeuxis is like Daiku, but it is not exactly as similar as epizeuxis because there is a slight difference between both these figure of speech, and also epizeuxis as well as Daiku involves some kind of similarity, that is of repetition of words as well as phrases in a sentence. So this repetition can be possible in both these figure of speech, but how these two figure of speech is different from each other, that is the point. So epizeuxis involves immediate repetition or phrases, immediate repetition of a word or phrases without any intervening words. सो एपिजॉक्सिस में क्या होता है कि लगातार एक ही वर्ड एक साथ एक ही सक्सेशन में रिपीट होता चला जाता है. जैसे मैंने बोला द प्लेट इज़ यकी यकी यकी, तो मैंने एक ही वर्ड को क्विक सक्सेशन में 3 बार बोल दिया एक ही सेंटेंस में. दिस इज़ कॉल्ड एज एपिजॉक्सिस. देन व्हाट इज़ डाइकूप? सो डाइकूप also involves repetition of a word or a phrase, but here in this daiku there is a intervening of repetition of words. So there is a intervening between repetition of words. So जैसे कि एग्जाम्पल है, हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज़ अनहैप्पी इन इट्स ओन वे. सो यहाँ पर डाइकूप में क्या होता है कि वर्ड रिपीट होता है या फिर फ्रेज़ रिपीट होता है, बल्कि क्विक सक्सेशन में यहाँ पर वर्ड रिपीट नहीं होता, कुछ वर्ड्स को छोड़कर वर्ड रिपीट होता है. यानी एक वर्ड कुछ वर्ड को छोड़कर रिपीट होता है. जैसे हैप्पी फैमिलीज़ आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज़ अनहैप्पी इन इट्स ओन वे. यहाँ पे अनहैप्पी कुछ वर्ड्स को छोड़कर फिर से रिपीट हो रहा है, वापस अनहैप्पी इन इट्स ओन वे. तो ये है डाइकूप. ये दोनों में डिफरेंस था. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस फिगर ऑफ स्पीच इन अ डिटेल. So epizeuxis derived from the Greek word epizeugnoumi, which means fastening together. Yes, fastening together in a sense that if I have said a sentence that the plate is yucky, 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 so I am here repeating a word yucky 3 times, and this repetition, and I am saying this word yucky, yucky in a very fast manner. So it involves a repetition where a person utter a sentence in a fast manner. So where he tries to repeat words in a fast manner. So this is called as epizeuxis. So when a person or when a writer uses such kind of figure of speech, he repeats the same word again and again to add on emphasis to an emotion or a state of mind. So this is called as epizeuxis. Now, so what effect this epizeuxis in a work creates? So it makes the reading of a literary text pleasurable. Yes, if we keep on reading any kind of text and if we find any words that keeps on occurring again and again in a work, so we derive a kind of pleasure by seeing repetition of words, and also it makes a text pleasurable as well as memorable in a sense, because every time when words keep on occurring and reoccurring again and again, so these words
had an effect upon us, and through these repetition we are again and again able to memorize about a particular लिटरेरी टेक्स्ट। तो क्या होता है, कई बार एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, तो उस रिपीटिशन की वजह से ही हम उस लिटरेरी टेक्स्ट को याद कर लिया करते हैं कि यस, इस टेक्स्ट में बार बार इसी चीज़ को रिपीट किया गया है या फिर इसी आइडिया को रिपीट किया गया है। एंड राइटर्स इंटेंशनली एपिजॉक्सिस का यूज़ करते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि जिस आइडिया को वो बार बार, जिस वर्ड को वो बार बार रिपीट कर रहा है, वो दरअसल एक आइडिया है एंड उसी पर वो रीडर्स को एम्फेसाइज करवाना चाहता है। देन डिफरेंस बिटवीन डाइकूप एंड एपिजॉक्सिस। सो डाइकूप इन्वॉल्व्स रिपीटिशन विद अ फ्यू इंटरविनिंग वर्ड्स। तो मैंने अभी बताया था कि डाइकूप में क्या होता है कि कोई भी वर्ड या फिर फ्रेज़ रिपीट तो होता है बट कुछ वर्ड्स को छोड़कर। सो हेयर यू कैन सी इन एना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय में एक सेंटेंस है, हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक बट एवरी अनहैप्पी, यहाँ पे अनहैप्पी, फैमिली इज़ अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो वर्ड्स को छोड़कर फिर से अनहैप्पी को रिपीट किया गया है। सो ये डिफरेंस है एपिजॉक्सिस और डाइकूप में, कि डाइकूप में कुछ वर्ड्स और फ्रेज रिपीट होते हैं बट कुछ वर्ड्स को छोड़कर। देन एपिजॉक्सिस में वर्ड्स और फ्रेजेस रिपीट होते हैं, वो भी एक साथ। But in episioxis involves a repetition of a word or a phrase in a quick succession. So here you see that the horror is repeated. This word is repeated in a quick succession here in this sentence, and this line is taken from a very famous work by Joseph Conrad, and that work is Heart of Darkness. Then this episioxis is used in so many kind of genres such as poetry, prose, drama, fiction, non-fictional works, as well as political speeches. And how to use episioxis, that depends upon subject as well as context. Now I am telling you some uses of episioxis. So when a writer uses or repeats again and again a word or a phrase, so that means writer wants to draw focus of readers to a particular thought, idea, emotion through this repetition. So he wants to create emphasis, and he wants readers that they should emphasize on upon idea which he is again and again trying to say by repeating that word. And also it makes a point clear. तो एपिजॉक्सिस से एक पॉइंट क्लियर भी हो जाता है। वो किस तरीके से होता है कि अगर मैं एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रही हूँ, जैसे यकी यकी यकी, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है, ये क्लियरली जो सामने वाला सुन रहा होगा मेरे इस सेंटेंस को, वो इंडिकेट कर पाएगा कि मैं इस एक्सप्रेशन से क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो उसके माइंड में क्लियर होगा कि वाकई में ये प्लेट डर्टी है, इसलिए मैं ऐसा सेंटेंस बोल रही हूँ, द प्लेट इज़ यकी यकी यकी। तो बार बार एक रेपिटेशन से क्या होता है, पॉइंट क्लियर होता है, आइडिया क्लियर होता है। देन रैली एंड ऑडियंस, यस, कि अगर बार बार अगर वोट भी देना होता है तो बार बार लोग रोड्स पर आकर अपने बारे में पब्लिसाइज़ करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, और वो बार बार आते हैं। तो उनका बार बार आना क्या इंडिकेट करता है कि वो चाहते हैं कि लोग हमें वोट दें। तो इसके थ्रू क्या होता है, अगर रेपिटिशन के थ्रू कोई भी, अगर हम किसी भी चीज़ पर बात कर रहे हैं तो हम अपनी बात को मनवा सकते हैं, दूसरों से एग्री करवा सकते हैं। सो रैली एंड ऑडियंस का मतलब है कि अगर कोई पॉलिटिकल स्पीच दे रहा है एंड वो पॉलिटिकल स्पीच देते समय बार बार एक ही चीज़ को बोलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस सुनकर कुछ ना कुछ ऑडियंस उनमें से सुनने वाली कुछ ऐसी भी होगी कि वो सामने वाले स्पीकर की बातों से एग्री कर लेगी। तो रैली का मतलब क्या होता है कि हाँ भर लेना, जो भी स्पीकर बोल रहा है उसे ऑडियंस एग्री कर रहे हैं। देन इंसिस्ट ऑन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यस, कि इसके थ्रू हम बार बार, एक राइटर क्या करता है, इंसिस्ट करता है, एम्फेसाइज, इंसिस्ट का यहाँ पे मतलब है एम्फेसाइज करना एक ही वर्ड पर, यानी यकी 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 का मतलब है डर्टी। तो यहाँ पे मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि ये प्लेट
मतलब डर्टी है। देन कम्युनिकेट डिस्पेयर और वेरीनेस। यस, इसके थ्रू एपिजॉक्सिस के थ्रू हम डिस्पेयर और वेरीनेस को भी कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? जैसे कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, यानी कोई आईसीयू में अगर भर्ती होता है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका नियर और डियर वंस अगर आईसीयू रूम में जाता है एंड उसे सडनली पता चलता है कि वाकई में मेरे करीबी दोस्त या फिर किसी की भी डेथ हो गई है, तो वो उस रूम से बाहर आने के बाद जो लोग उससे पूछते हैं, तो लोग जो पूछने वाले होते हैं वो चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। So, an episioxis is helpful for a writer to communicate his despair as well as weariness to readers, and also I kept on repeating same words again and again, so that will create a humorous effect upon readers. So in this way, this literary device serves or performs a very useful function in a literary work. So that is why a writer uses such kind of figure of speech in their works, and also it creates a particularly effective section of a text. So this episioxis tries to create or makes a पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट वेरी इफ़ेक्टिव। सो इस फिगर ऑफ स्पीच की वजह से एक टेक्स्ट का पर्टिकुलर सेक्शन भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। एंड ऑल्सो रीडर्स पे अटेंशन टू अ पर्टिकुलर पैसेज। येस, रीडर्स इसके थ्रू एक पर्टिकुलर पैसेज पर अटेंशन भी दे पाते हैं कि बार बार एक राइटर क्यों इस चीज़ को रिपीट कर रहा है, वो इस चीज़ पर कंटेम्पलेट करते हैं। देन दिस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड टू इंस्पायर, एनकरेज एंड मोटिवेट द ऑडियंस। यस, हमें अगर किसी आइडिया पर एम्फिसाइज करवाना है, तो यस, अगर हम बार बार एक आइडिया को रिपीट करते रहेंगे और वो अगर आइडिया अच्छा हुआ, तो उससे क्या हो सकता है, ऑडियंस इंस्पायर हो सकती है, वो एनकरेज हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस की बात कर रही हूँ। देन इट फर्निशेस फ्रेशनेस इन द टेक्स्ट एंड गिव्स अ काइंड ऑफ आर्टिस्टिक इफेक्ट टू अ piece. So in this way, this figure of speech serves a very useful tool for a writer. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एपिजॉक्सिस के। यहाँ पे द राइम ऑफ एंशंट मैरिनर बाय सैमुअल कॉलरिज। यहाँ पे अलोन अलोन वर्ड एक साथ क्विक सक्सेशन में रिपीट हो रहा है, तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एपिजॉक्सिस। देन यहाँ पर नो 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 ये रिपीट हो रहा है। देन नेवर नेवर नेवर। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एपिजॉक्सिस के। यहाँ पर हाक हाक, देन अराइज अराइज। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एपिजॉक्सिस के। देन इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर ओवर होता है। होप दिस वीडियो लेक्चर विल हेल्प यू इन योर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स। थैंक यू।